پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے, کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. آج کا محاذ جیالوں کے نام, رحمان ملک, سینیٹر رحمان ملک. ہاؤ آر یو سر, کیسے ہیں آپ؟ آپ کا چہرہ, باڈی سٹائل دیکھ کے آپ کے والد مجھے یاد آگئے, کیونکہ میرے کولیگ تھے. شفقت بھائی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے, اس سے پہلے ہم ڈائریکٹر کٹھے تھے. ون آف دا فائنسٹ آنیسٹ آفیسر, اینڈ وی ایکچولی لرنڈ اے لاٹ فرام ہم. اور مجھے خوشی ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے ان کا نام اسی طرح روشن کر رہا ہے جیسے وہ تھے. گڈ لک ٹو یو, گڈ لک ٹو یو. ڈیفینیٹلی. مگر پہلے ذرا آپ کی کمانڈنگ ہائٹس مرگلا کی میں دکھاؤں. دس از این انڈسکلوز لوکیشن. آف کورس سینیٹر صاحب کم ہوتے ہیں پاکستان میں, جب ہوتے ہیں تو پھر ادھر ہی پائے جاتے ہیں, ادھر ہی پائے جاتے ہیں. میں لوکیشن آپ کو نہیں بتاؤں گا, مگر میں یہ آپ سے ضرور پوچھوں گا ایز فار ایز آپ کی جو واپسی جو ہے از کنسرنڈ, کہ پاکستان بڑے عرصے بعد آپ واپس آئے ہیں. دیکھیں بہت عرصہ تو نہیں, 3.5 ہفتے باہر رہا, اور وہ بھی ڈیوٹی کی صورت میں, کیونکہ میری پارٹی مجھے ساتھ لے کے گئی تھے, میری لیڈرشپ ساتھ لے گئی. دور سے آئے ہیں آپ, امریکہ سے آئے ہیں. امریکہ سے لندن گیا, لندن سے دبئی آیا, دبئی سے کراچی گیا, پھر کراچی سے یہاں آیا. بہرحال کچھ ڈیوٹیز کے حصے ہوتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر لیڈر, وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں, ہمارا سب سے پہلے فرسٹ پاکستان, اور پاکستان کی بات کی, اور میرا سارا کچھ جو رپورٹ ہوا وہاں سے وہ آپ کے سامنے. Let's have a seat. سینیٹر مجھے یہ بتائیں, ایک تو you got hurt the other day, how are you feeling? وہ میڈیا ہائپ, وہ جو سٹیج تھی وہاں پہ کویت کا جو نیشنل ڈے تھا, تو اس میں وہ پلائی ووڈ کا تھا, وہ اکھڑا ہوا تھا. نیچرل جب بہت سی پبلک ہوتی ہے تو میرا پیر وہاں اڑ گیا, میں گرا, لیکن ود 2 سیکنڈ گاٹ اپ, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن بعد میں مجھے دوستوں نے فون آیا کہ آپ گر کے زخمی ہوئے, کوئی کہتا ہاسپٹل میں چلے گئے, کوئی ہو گیا بیہوش ہو گئے. بہرحال میں ٹھیک ٹھاک ہوں, there is no problem. And you're one of the most selfied people in Pakistan, obviously. That is the problem, that's true. But anyway, people love, اور ان کا جو پیار ہے اس کو آپ پیچھے نہیں کر سکتے. اگر سیلفی مانگتے ہیں, خوب شک کسی وقت وہ نیگیٹیولی یوز کر لے, لیکن آپ کو دینی پڑتی ہے. اللہ خیر کرے. Well, I hope you recover. Thank you. Senator صاحب, brass tacks. جن لوگوں کو پتہ نہیں تو پتہ نہیں if they've been living under a rock, مگر سیریس قسم کی کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیرر ایکسپیرینس ہے. میں فار دا ریکارڈ کہنا چاہوں گا کہ رحمان ملک صاحب جب داعش کا نام لے رہے تھے, جب داعش پاکستان میں آ چکا تھا, مگر لوگ گورنمنٹ, یہ سرونگ گورنمنٹ, اس کے سینئر لوگ تیار نہیں تھے. ایون فوج میں اعتراف اوپنلی نہیں ہو رہا تھا کہ داعش پاکستان میں ہے. مگر کیونکہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, ویل اسٹارٹ ود دیٹ. یہ جو ہفتہ 10 دن گزرے ہیں بھیانک, ایز دا فارمر ٹاپ کاپ سیکورٹی آفیشل آف دس کنٹری, رحمان ملک کیا کہتا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ Is it going to be solved? Is worse coming? What's happening? یہ کتنا افسوسناک معاملہ ہے, جس دردناک طریقے سے یہ نئی ویو چلائی گئی ہے. میں نے ورڈ استعمال کیا, چلائی گئی ہے. اس میں آپ انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس کی بیک گراؤنڈ میں تھوڑی دوں گا. اگر آپ دیکھیں تو چائنا میں ETMI, اس کا بھی ایپی سینٹر کیا رہا, ہوست, اور افغانستان کے وہ علاقے جو آج بھی ٹریننگ کیمپس ہیں. اس کے بعد انڈیا اور افغانستان کا ایک جو گٹھ جوڑ ہوا, اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے جس انداز سے بلوچستان میں انسرجنسی کرانے کی کوشش کی, اور اس کے اعتراف کیے, اور اعتراف بھی کیے, اور پھر یہ بھی ایک بڑا اعتراف پہلے سے موجود ہے کہ ایسٹ پاکستان کو علیحدہ انڈیا نے کیا. اور آپ دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر بنگلہ دیش میں بیٹھ کے اپنی 56 انچ کی چھاتی کھول کے, اور بڑا سا زبان جو اس کی کبھی بند نہیں ہوتی ہے پاکستان کے خلاف, بڑی سی کھول کہتا ہے پاکستان ہم نے توڑا اور مفتی بانی کو پیسہ ہم نے دیا. تو جب یہ یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے, یہ اتنی جھوٹے رہے, وہاں کہا جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو یاد آگا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ریزولوشن وہاں پہ پھاڑا تھا, وہ نے کہا تو کہ I'll go back and fight in my country. I'm not going to believe you what you are saying. My country hearkens to me. So that's the day it started. And the same thing is being replicated in Balochistan.
What is happening there? It is all India. सेनेटर, आप जब गए थे अभी अमेरिका, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, ये ट्रम्प ऑफिशियल्स से बात की, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से ये देखिए जी, उस मैसेजिंग की? वक्त तो एक फेज थी जिसमें उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, ट्रांजिशन का पीरियड था, तो हम पहली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी मिले और जो भी आने वाले थे उनको भी मिले, और उसमें जो एक चीज मैंने देखी, और एटलीस्ट मैंने 5 उनके थिंक टैंक्स को एड्रेस किया, और जो मुझे फील मिली कि यहाँ कलमा खैर नहीं है पाकिस्तान के लिए। Really? बड़े क्लियर आवाज से मैं अभी भी आवाम को बताना चाहूंगा, वो इसलिए कि जो इंडिया का एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है अमेरिका में, वो बहुत ज्यादा है, और वो प्रोपेगेंडा इस हद तक जा चुका है कि वो समझते हैं कि सब कुछ पाकिस्तान कराता है और पाकिस्तान का कसूर है। ये नहीं बताता कोई उनको कि भाई इंडिया जो हमारे साथ कर रहा है डेली, जो अपने राह के थ्रू और अफगानिस्तान के थ्रू, उसको काउंटर करने वाला, बताने वाला कोई नहीं वहां पे। इसलिए कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए था अपनी लॉबिंग करना, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की पॉलिसी मादरत की बजाय एग्रेसिव रखते, वहां पे मौजूद होते, उससे पहले मौजूद होते, तो अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है और वो पॉइजनस प्रोपेगेंडा जो है, उसका हम शिकार हैं इस वक्त। वो जो 10-12 दिन के लिए फातमी साहब गए थे और खबर भी आई थी कि ही मेट टॉप ट्रांजिशन लीडर्स, सही थी खबर या देखिए जी, मुझे नहीं पता वो किन को मिले, लेकिन मैंने जो वहाँ पे जर्नलिस्ट को भी मिला, CNN के लोगों को मिला, वहाँ पे अपने मीडिया को भी मिला, वहाँ पे उसका जो माहौल था वो ये था कि पाकिस्तान को इस वक्त वो नेगेटिव लिस्ट में देख रहे हैं, और अगर ये 15 दिन रह के आए थे और अगर इनका वाकई कोई पॉजिटिव काम था, तो जो मैं बात कर रहा हूँ फिर गलत होनी चाहिए। पिछले दिनों में दो बड़े जाले हैं, एक रमान मलिक, दूसरा आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने डायरेक्टली ट्रम्प साहब को एड्रेस किया है। ठीक है, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, उस पर मैं आता हूं, मगर द फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने भी इंटरेस्टिंग बात की जब वो थे उधर और वापस आए। उन्होंने कहा कि गिव ट्रम्प अ चांस, और उन्होंने ये भी उम्मीद की कि ट्रम्प साहब ने जो ओबामा साहब की गलतियां हैं, जो उन्होंने एंगेज नहीं किया डायरेक्टली पाकिस्तानी लीडरशिप को, ट्रम्प साहब एंगेज करें और उन्हें करना चाहिए। इन अ वे इसे इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में ऐसे देखा गया कि जरदारी साहब in order to make up with the establishment and even the government, जरदारी साहब एक एम्बेसडर बन के, सेल्फ अपॉइंटेड एम्बेसडर बन के, और रूमर्स भी थे कि पता नहीं $1 मिलियन दिए हैं या $5 मिलियन दिए हैं अटेंड करने के लिए, है जी। तो ये क्लैरिफाई करें कि सबसे पहले तो मैं हाशा वकल्ला कसम खा के कह सकता हूं कि नॉट अ पाई हैज बीन गिवन। हमारी इनविटेशन सेनेटर मकेन की तरफ से, जो कि कोई भी जो सेनेटर है वो 5 लोगों को इनवाइट कर सकता है, वहाँ पे जो हमारे जानने वाले दोस्त हैं उन्होंने डिनर्स में भी इनवाइट किया, कोई किसी किस्म की पाई भी नहीं दी गई, लेकिन लोगों ने यहाँ पे बड़ा हंगामा और झूठ बोला। बहर अल्लाह उनको माफ़ करे, मैं यही कहूँगा। लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगा कि जब हमारे यहाँ ये एक तासर आता है कि इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान, मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, तो क्या यार आसिफ अली जरदारी साहब एक पाकिस्तानी नहीं है? बड़े पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं। अगर वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो इस इनिशिएटिव को हम सेल्फ पॉइंटेड नहीं कह सकते, वो एक इनिशिएटिव है जो उन्होंने अपनी कौम के लिए दिया। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट को और हमें डिफरेंट समझना, या मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी को डिफरेंट समझना, ये ज्यादती है। आपके वो पहले सवाल पे मैं आता हूँ कि ये जो वेव है और ये लोगों के जहनों में है, आई थिंक पीपल वांट टू नो कि आखिर ये क्या वजह है, क्यों हुआ है। जब भी कोई ऑपरेशन होती है तो जो फौजों की एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर हार रहे हैं या मार खा रहे हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। टैक्टिकल रिट्रीट की उन्होंने, और अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने वो रिट्रीट की तो वो हमारा दुश्मन अफगानिस्तान जो है इंडियन उन्होंने हाथों लिया, और उनको फिर जिस जगह रहने के हाइड आउट दिए, उनको पैसा दिया, उनको असला दिया, उनको हर चीज वो प्रोवाइड की जो पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसका सबूत ये है कि जमायत उल हरार ये बेसिकली एक प्रॉक्सी होती थी। जमायत उल हरार जो है ये बेसिकली एक प्रॉक्सी होती थी, और जब टीटीपी को काम करती थी तो वो फौरन कहते थी हरकत हरार ने किया। तो उस वक्त मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये एक ऐसी प्रॉक्सी है जिसमें कोई भी बंदा हो सकता है। फिर मैंने थोड़ी प्रॉक्सी की इन्वेस्टिगेशन की तो उस वक्त एहसान उल्लाह एहसान थे,
तो भाई इहसानुल्लाह साउंड कौन है? नो, इट वाज जस्ट लाइक ए PR इंस्टीट्यूशन। फिर वो हटा और फिर शाहिदुल्लाह शाहिद आ गया। उसके बाद आपने देखा खालिद उमर खासानी जो है वो आ गया, जिसका असली नाम वली मोहम्मद है। अब देखना यह है कि ये सारी गेम कैसे इनिशिएट होती है। यही जो वली मोहम्मद है, इसने वो TTP के नाम पे आ गया, फिर उसने डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वो नाम इस्तेमाल कर रहा था। फिर ये TTP से अलहदा हुआ और दैश को ज्वाइन किया, और ये दैश का ज्वाइन करना वाकई तौर पर पूरी मीडिया में रिपोर्ट हुआ। और फिर आपने इसके ज्वाइन करने के बाद इवन टेक्सला में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इंक्लूडिंग कराची में वॉल चॉकिंग देखी। फिर उसके बाद दैश पे कुछ तालिबान ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दिए, फिर दोबारा ये TTP में चला गया। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ TTP, जमात उल हरार और आपका अल-कायदा और जितनी भी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही हैं, इनकी नानी एक है। अब उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पब्लिक के नोटिस में होना चाहिए, वो है लश्कर जंगवी। जिस तरह इसकी एवोल्यूशन हुई वो जंग से हुई, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लश्कर जंगवी। फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती स्पाई साहबा से लेकर बहुत से काम इसने किए, और जो पिछली वेव सी टेररिज्म में उसमें हर जगह सिग्नेचर जो था वो इसका लश्कर जंगवी का आता था। इसलिए अगर आपने सियाल का नाम सुना होगा, जो बलूचिस्तान में जिसको नॉकआउट किया और जिस अंदाज से वो ऑपरेट करता रहा, वही आपके सामने है। और यही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पूरी दुनिया में ये साबित करने की कोशिश की कि शिया काफिर है, विच वॉज रॉन्ग। आई एडवोकेट कि उनकी ये फिलॉसफी बिल्कुल गलत है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताऊं कि लश्कर जंगवी का जो मेन लीडर कासमी है, उसका जो नेक्सस हुआ TTP के साथ, वो बड़ा खतरनाक था। आज भी अगर देखें तो लश्कर जो इसका जमातुल हरार है, उसका मेन सरकर्दा बंदा जो है वो लश्कर जंगवी का कासमी है। अब आगे बात कि आपको याद होगा कि मैंने एक कहा था सेंटेंस कि पंजाबी तालिबान है बहुत ज़्यादा साउथ ऑफ पंजाब में, इनका खात्मा होना चाहिए। और आपको पता है कि उस वक्त मेरे खिलाफ तो इवन ये भी कहा कि मैं प्रेजुडिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कौम को, मैं कौम को नातफाकी की तरफ ले जा रहा हूँ। बहरहाल मैं अड़ा रहा, और फिर बहुत सी किताबें भी लिखी गई पंजाबी तालिबान पे। आज अगर आप देखें कि जब हम लड़ रहे थे फाटा में, जो हमारी हुकूमत ने ऑपरेशन की थी बालाकांड स्वात में, और बड़ी सक्सेसफुल की, और वहाँ से उनको भगाया भी और उनको टेक ओवर किया, और उन जितने हमारे डिस्प्लेस्ड लोग थे उनको हमने सेटल भी किया। बट इफ़ यू सी द होल सिचुएशन नाउ, वही चीज़ जो मैंने कही थी कि स्लीपिंग सेल्स हैं बहावलपुर के इर्द गिर्द, रहीम जहाँ की तरफ। मेरा कुछ से कोई लड़ाई नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं है। आज वो साबित हो रहे हैं। दैश डस्के से शुरू हुई, लाहौर से होती हुई, बहावलपुर से होते हुए कराची पहुंची। उस जमाने की बात से याद आया जब रहमान मलिक साहब ने सजेस्ट किया था ओपनली कि जो ISI है उसको अंडर द इंटीरियर मिनिस्ट्रीज एम्बिट काम करना चाहिए टेक्निकली। वो दिन कहते हैं लोग जो तारीख को जानते हैं, कहते हैं वो दिन था और आज का दिन है। रहमान मलिक रियली एंगर्ड, मेड, बहुत लोग आप पे गुस्से हुए थे। मगर मूविंग ऑन, उस कंट्रोवर्सी को छोड़ें, मैं उसको मूव नहीं ऑन करने था, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये मूव ना मेरी तरफ से हुई थी और ना इस मूव में मेरा कोई इंटरेस्ट था और ना ही ये मेरा इनिशिएटिव था। अवाम की इतला के लिए भी मैं अर्ज कर दूं कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से 2 नोटिफिकेशन उस दफा इशू हुई थी, एक IB को इंटीरियर के नीचे प्लेस करने के लिए और एक ISI को मेरे नीचे प्लेस करने के लिए। नहीं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और जब ये नोटिफिकेशन इशू हुई, मैं और प्राइम मिनिस्टर जहाज में थे। जब हम लैंड किए हीथ्रो एयरपोर्ट पे तो हमारे सबसे पहले जो हमें ये खबर मिली कि ये थी, आप प्राइम मिनिस्टर गिलानी से पूछ ले। मैंने कहा जिसने भी कराया ये गलत कराया है, इसलिए कि ISI कभी भी इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर काम नहीं करती, क्योंकि इसका डोल वर्क है बोथ इन द आर्मी एंड इन द सिविल। और वहीं से ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई कि ये कैंसिल करें। और पता ये चला कि IB की इंस्ट्रक्शन थी, हमारे बाबू साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने साथ ISI की भी डाल दी। ये है फैक्ट। बाबू को फारिग किया था? बाबू उसी वक्त फारिग हुआ, वो चला गया, उसको एडिशनल सेक्रेटरी था, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। और आपको पता है ऐसे ब्लंडर होते हैं गवर्नमेंट में। और एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, दुनिया की
इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को थल्ले लगाना इज नॉट के आई मीन रोज ब्लंडर नहीं होता है दिस ब्लंडर वाज ब्लंडर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आगे ये वेरीफाई कर सकते हैं ना। उसके बाद मैं समझता हूं कि मैंने 5 साल गवर्नमेंट के साथ काम किया और आई वाज अ मीडिएटर बिटवीन द आर्मी एंड द सिविल गवर्नमेंट, और जिस अंदाज से Indeed. हम आए भी थे वो भी आपके सामने। आई हैड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्किंग रिलेशन विद जनरल पाशा। आईएसआई मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी और हमारी आईएसआई, मैं मेरे अपनी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी है कि पढ़ता हूं इंटेलिजेंस आई ये सर्वे, अगर आप इंटेलिजेंस 7 लास्ट even today it's my arm is Pakistan anything else ज्यादा नहीं एग्री करें सक्सेसफुली एक साल के अंदर मार होते बीबी की लास्ट ईयर 09-3 हो रहा है तो और सब ये जो नया का नाम अब इस रिपोर्ट एक पार्ट उसके नैप की जो वीकनेसेस थी, क्योंकि नैप वाला बाजू आपका वीक हो गया था और ज़रबे अर्ज वाला बाजू आपका स्ट्रांग था। अब आपने ज़रबे अर्ज के बाजू में इंजेक्शन लगाया ताकि नैप वाले बाजू को साथ लेके चले, क्योंकि नैप वाला बाजू फारिग हो गया और फौज को आपने बड़ी बढ़ोतरी दी है कि जब रहील चीफ चले गए, आई एम सॉरी टू से, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स भी और कुछ मीडिया और कुछ लोग सलाम करते हैं चढ़ते सूरज को, और जो ही रहील शरीफ साहब चले गए, काफी सर, आई एम सॉरी टू से, जब वो गए तो उनको वो जो नेचुरल उनका एक हक था, उनको ज़मीन मिली, जिस अंदाज से उसको एक्सप्लॉइट किया गया, उसका मैसेज पाकिस्तान तो गया ही गया, टेररिस्ट हो गया, आपके दुश्मनों को गया। और वो मैसेज क्या था कि शायद फौज और हुकूमत एक पेज पे नहीं है। और आपने देखा कि वही इंटरवीनिंग पीरियड जमातुल हरार ने भी, इंडिया ने भी और अफगानिस्तान ने भी यूज़ किया। और फिर इनके पास, फौज के पास और क्या रह गया था, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम री अटैक करें। आप क्या चाहते थे कि ये अटैक होते रहे हम पे? और अगर ये वो लोग कहते हैं, मेरा उनसे सवाल है, भाई बताओ कि क्या जमातुल हरार आर्मी ने बनाई है? ये तो टीटीपी की है। टीटीपी किसने बनाया? बैतुल्लाह मसूद ने। बैतुल्लाह मसूद के पीछे कौन था? मसरी था। मसरी के पीछे कौन था? अलकायदा था। अलकायदा के पीछे कौन था? मैं नहीं कह रहा हूँ, हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि जी अलकायदा को और दैश को हमने बनाया। यही तो मैंने क्वेश्चन किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप इस अपनी पूरी दुनिया पे एक एहसान करें, और एहसान ये कि कमीशन बनाएं और देखें कि दुनिया में टेररिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ। जब अब आप इन्वेड करना दुनिया पे मुल्कों को छोड़ देंगे, टेररिज्म खत्म हो जाएगी। आज ही मेरा फर्म बिलीव है कि अमेरिका अगर चला जाता अफगानिस्तान से और सीरिया से, खत्म हो जाएगी लड़ाई। आपकी 90% ये जो इस वक्त एग्रेशन है वो खत्म होगा अगर उनका हुक्का पानी भी डिफेंस इंडस्ट्री का खत्म हो जाएगा। हैविंग सेड सो, अगर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको एक पॉइंट मैं और देता हूं जो कि मैंने उनको लिख के भेजा उनके दफ्तर को, जो एक्नॉलेज हुआ है। 2012 में किसने ट्रेन किया था दैश के टेररिस्ट को इन जॉर्डन? लेकिन जो बंदा आप ट्रेन कर रहे हैं एज ए टेररिस्ट, जो ट्रेन करना चाहते हैं कलाशनकोव उसने कैसे चलानी, उसने सुसाइड बॉम्बर कैसे बनाना है, तो क्या ख्याल है वो आपके लिए रहेगा? तो हुआ क्या कि एक वक्त आया और आगे भी आएगा कि इफ यू डू नॉट स्टॉप देम नाउ, even they will become a bigger monster and they'll come to bite you. इसलिए मैंने कहा है, देखें मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके पास एक बड़ी मैं पते की बात कर रहा हूँ और अपनी कौम के लिए भी कह रहा हूँ कि वेस्ट को
اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ چاہیے کہ ہی شوڈ فائٹ along with Muslim community Not against rather than fighting against Muslims, because every Muslim is not terrorist and every terrorist is not Muslim. کھلا ہے اس حساب سے ایک میں کہتا ہوں وہ مشین گن نہیں ہوتی وہ گوروں کے زمانے کی، وہ ڈگ 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 ملٹی سلنڈر، آپ نے پی 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 ہر سلنڈر پہ فائر کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں نشانہ لگ جائے. وہ میں کلیریفیکیشن دیکھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہٹ اینڈ ٹرائل پہ کام نہیں کرتی سر. سیاست پہلے مہینوں میں سالوں میں چینج ہوتی تھی، اب سیاست گھنٹوں میں چینج ہوتی ہے. یو ہیو گڈ کیما پولیٹیکل کیما، بٹ ہیونگ سیڈ سو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 پوائنٹس دیے اور اس پہ ہم نے اعلان بھی کیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ لاہور سے لے کے ریلی لے کے گئے فیصل آباد میں، ڈسپائٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ پہ حملہ ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں گے اس وقت قوم ایک ٹیررزم کی ویو کے اندر، میں یہ عرض کر دوں نا یہاں پہ ہی از بریو اینڈ ہی ول کنٹینیو ٹو بی بریو، کیونکہ وہ ایک بہادر But was he smart? Brave and smart میں سینیٹر and also educated and also well But is he educated. smart? دیکھیں نا 4 نکات دیکھیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں، 4 نکات پہ بات کر، مجھے اجازت دے دیں. 4 نکات دیکھیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، 4 نکات پہ بات کر، مجھے اجازت دے دیں. ہمیں بلاول میں بی بی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. میں نے ووٹ نہیں ڈالا آج تک پی 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 کو، چلو آئندہ ہمیں ڈالیے گا. مگر مجھے بلاول میں مجھے میری بی بی نظر آتی ہے، مگر بی بی 4 نکات دے کے بیک آف نہیں کرتی. نہیں، ابھی یہیں پہ بات کریں، ہم نے بیک آف نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ ان حالات میں جب کہ بم پڑ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی ریلیاں نکالیں اور شروع کریں اور بہت سے لوگوں کو شہید کروا دیں؟ یہ بڑا کنسیڈرڈ ویو ہے. یہ جو پراپنگنڈا کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو یہ چاہتے تھے کہ ایک نیگیٹیوٹی لائی جائے. ہم سیاست کر رہے ہیں سیاسی انداز سے، پاکستان کی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے. آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اس کی وجہ یہ کہ میرا رائٹ ہے بتانے کا کہ پی ایم ایل این لوگوں میں وہ ساکھ جو ان کی تھی وہ کھو چکی ہے. میں بار بار پناما پہ نہیں آؤں گا کیونکہ اس کو میٹر سب جوڈس ان دی کورٹ آف لا، اس کا فیصلہ کیا آتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. بہرحال جو بھی آئے گا، ہاتھ آپ نے ہلکا رکھا ہوا ہے. بہرحال نہیں، میرا ہلکا ہاتھ نہیں ہے. میری رپورٹ جو ہے وہ اس وقت بھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ ہے، اور میں اوپنلی کہا مجھے بلایا جائے گا تو میں جاؤں گا. جب بھی کوئی، یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹرانسفر ہو جائے، مر جائے، یا اس کی کوئی اسائنمنٹ چینج ہو جائے، تو وہ افسر جا کے رپورٹ یا کوئی ایف آئی آر کی جو ضمنیاں پیش نہیں کر سکتا، وہی جاتا ہے جو ہو. تو آج فرض تو پریزنٹ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کا بنتا تھا نا. بہرحال ایون ہیونگ سیڈ وین دیٹ از اے پارٹ آف دی ریکارڈ آف دی سپریم کورٹ، اگر کوئی بلاتا تو ضرور بتاتا. بہرحال یہ کہنا کہ ہلکا نہیں گورو والی مشین، گورو والی مشین وہ بھی بات کرتا ہوں، وہ بھی آپ بات کرتا ہوں، وہ بھی بات کرتا ہوں. ہاں اگر آپ دیکھیں تو میری وہ بات یاد رکھ لیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جالے کی سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ ساری پارٹیاں مل کے ایک ٹی او آرز بنا لی ہے. اس ٹی او آرز کا کوئی فائدہ نہیں ہونا کیونکہ کشتی کا کوئی ملا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ وہی ہوا، بری ہوئی. کیوں میں نے کہا آج میں بتاؤں، اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں چل سکتے آگے، گجرا والے سے ایک بڑا سا لوہے کا تالا لائیں اور پارلیمنٹ کو لگا دیں. کیوں کہا تھا آج آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ نے اپنی ساری پاورز جو آپ کی پارلیمنٹ کی تھی وہ آپ نے سپریم کورٹ کو دے دی، اور سپریم کورٹ آپ اپنے حساب سے فیصلہ کرے گا. لیکن عوام کا جو اعتماد ہے پارلیمنٹ پہ وہ کھوتا ہوا نظر آیا. میں اس کو بات کو ختم کر لوں. لہذا میں پوری عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے 4 پوائنٹ چل رہے ہیں، اور وہ پوائنٹ میں ہر جگہ ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور آج میں انڈورس کر رہا ہوں. اگر آپ یہی بات کرنے لگے ہیں فیوریٹزم کی تو ذرا مجھے دیں یار. نوٹیفیکیشن جو ابھی ہوئی ہے پنجاب میں رینجرز کی دیکھی ہے، اور جب نہیں دیکھیے نا، ہم چاہتے ہیں ٹیررزم کے خلاف ایکشن ہو، لیکن کیا ہوتا تھا رینجرز جو تھی پولیس اس کے متحد تھی. آج بائی نوٹیفیکیشن یہ کہا گیا ہے کہ رینجر از ہیئر بائی پلیسڈ انڈر پولیس، یعنی کہ پولیس کے کہنے پہ کام ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ سٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ کیوں
सिंध के साथ। आप छोटी सी एक और देखेंगे कितने काम कर रहे हैं यहाँ पे जो स्पेशल असिस्टेंट है फेडरल गवर्नमेंट में और पंजाब गवर्नमेंट में, वो 4-5 रख लिए थे सिंध गवर्नमेंट ने, उड़ा दिए। और जिस अंदाज से मैं रोज खबरें पढ़ता था, और आपके जो साहबजादे हैं उनको भी जी, वो तो टेक्निकल, वो तो एक टेक्नोक्रेट्स हैं और उनको मजबूर करके रखा गया। बहरहाल मेरा ख्याल शायद वो ना है, अभी मैं तो कह रहा हूँ। बहरहाल एक खिदमत कर रहे हैं हम, कोई भी हो, ए हो या बी हो या सी हो, वजाद साहब, बात यह है कि आज जो मेरी अपील होगी इस वक्त पूरी कौम से आपके जरिए कि ये वो वक्त है लड़ाई का नहीं है, और एक कॉमन स्ट्रेटजी को तय करने का, और अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पीछे खड़े होकर उनको ये मैसेज देने का, ओके यू फाइट, वी आर बिहाइंड यू। डेफिनेटली, बट डू टेल मी अबाउट दीज रूमर्स अबाउट इशरतुल इबाद पीपीपी ज्वाइन कर रहे हैं, नबील कबूल कर चुके हैं, साथ दबंग किस्म की तस्वीर दी प्रेसिडेंट साहब के साथ, और ये जमात इस्लामी के साथ अब अलायंसेज होंगी। इशरतुल इबाद साहब की दोनों मीटिंगों में मैं मौजूद था, ना उन्होंने ऑफर किया पार्टी को ज्वाइन करना, ना हमने उनको कहा कि आ जाओ, इसलिए कि वो 2 साल तक तो जा ही नहीं सकते। गवर्नर रिटायर हुए हैं मेरे भाई, अब आगे जमात इस्लामी। मैं ओपनली कहता हूँ कि सिराजुल हक साहब मेरे ज़ाती दोस्त हैं, मैं उनको मिलता हूँ, मैं उनके साथ डेस्क में ही बैठता हूँ। आप यकीन करें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप उनका एक इंटरव्यू जरूर, मैंने हम ये पिछले दिनों में किया, इंटरव्यू करें, ग्रेट गाय, इंटरव्यू करें और देखें अगर कोई चीज़ पॉजिटिव उनकी है तो उनको हमें हाईलाइट करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम ये डिफरेंस जो कि पाकिस्तान में चल रहा है कि मदरसा के लोगों के पढ़े हुए, हम लोग जैसे कॉन्वेंटों के स्कूलों के पढ़े हुए हैं, इनका जब तक एक इकट्ठे नहीं होंगे, होमोजीनियस नहीं होंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किलात हैं। आपको याद है कि मैंने सारे सेक्ट को इकट्ठा करके एक मदरसा रिफॉर्म का एक एग्रीमेंट किया, और मैं आई वाज होपिंग कि इस 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट जो है उसका कोई लाभ बना लेती। आपने एक क्वेश्चन शुरू में किया था कि नैब कमजोर हो गया, भाई नैब स्ट्रांग कब हुआ था? सबसे पहले तो ये बात करें ना कि आपने फौज के साथ उसको लिंक किया। स्टिल बॉर्न था, नहीं सर, स्टिल बॉर्न था, नहीं बॉर्न कोई नहीं, बाहर ना बड़े शुरू से हैं, जरूरी नहीं कि हमने नाम उसको नैब का दिया, काम यही हो रहा था, सिर्फ आपने एक लिस्ट कंसोलिडेट कर दी 20 नुकात की। बट ये जो ग्रैंड अलायंस है चलते चलते, इफ मियां साहब सर्वाइव्स द नेक्स्ट फ्यू डेज वीक्स इन पैनामा, ये जो ग्रैंड अलायंस और 2018 सामने नजर आ रहा है, ये जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट ग्रैंड अलायंस है, जिसमें एक नई प्रो एस्टैब्लिशमेंट पीपी है, जिसमें ऑब्वियसली एक पुराना प्रो एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई है, और इसमें बहुत पुराना अल्ट्रा प्रो एस्टैब्लिशमेंट ये बिल्कुल है। ये तो ऐसे शरीफ बरादरान इधर और ये मैं ऐसे मुतफिक नहीं हो रहा हूँ। प्रो ग्रैंड में पीटीआई को जिन्होंने फेवर किया, और धरना किसने कराया, खाना उसके लिए कहाँ से आता था, कुर्सियाँ कहाँ से आती थी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ुमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है। हम गरीब वर्कर्स की पार्टी हैं, जालों की पार्टी हैं, और आज एक मिडिल क्लास फैमिली का, गांव का रहने वाला रहमान मलिक आपके सामने है, जिसको इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। तो हम यहाँ से काम करते हैं, इससे नहीं करते, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कोई ग्रैंड अलायंस बन भी जाता है फॉर एग्जांपल, तो दैट विल बी अ पॉलिटिकल वन, और अलायंसेस बनते भी हैं और टूटते भी हैं। और मैं समझता हूँ अगले 6 महीने में वजाद साहब आप देखेंगे कोई चीज़ शेप बनती हुई नजर आई। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि मुशर्रफ साहब का जो आउस्टर था, वो आसिफ जरदारी, रहमान मलिक और अशफाक परवेज कियानी ने बैठ के कहा था कि इट्स टाइम फॉर डेमोक्रेसी टू फ्लो, मुशर्रफ हैज टू गो, as long as Musharraf is in Pakistan, democracy is threatened, and इसके लिए रनवे बनाओ, अच्छा सा जहाज तैयार करो, वैसे फर्क करो। रनवे तो बन गया था बहुत पहले, लेकिन ये मैसेज उनका जो था जाने का, वो डेफिनेटली मैं कैरी करके गया था जनरल मुशर्रफ के पास, और जनरल मुशर्रफ के साथ जो हमारी बातचीत हुई, नेचुरली अभी मैं नहीं बात कर सकता, अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि फ़ैसला हो गया था, और उसमें सारे स्टेक होल्डर जो थे वो ऑन बोर्ड थे। लेकिन ये भी फैसला किया था, और उसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, कि इनके खिलाफ अभी कोई एक्शन न लें, क्योंकि जमहूरियत को आगे लेके चलना है, और हमारा एक बहुत ही बड़ा मुल्क, बहुत सा बड़ा मुल्क, मैं बताता हूँ। आपने फौज को कैसे कन्विंस किया? मेरी बात सुनिए, को कैसे देखें, हालात और वाकयात, और टाइम इटसेल्फ टीचेस पीपल, एंड इट क्रिएट्स यू कैन से इंटरेस्ट। तो फौज का भी इंटरेस्ट उस वक्त यही था कि वो चले जाएं,
اور جمہوریت کا بھی یہ انٹرسٹ کا تو وہ چلے جائیں. سیاست میں نے یہی کہا ہے بدلتی ہے اور بدلتی رہے گی. سیاست کا ایک اپنا طریقہ کار ہے چلنے کا, ایک نیچرل کورس ہے, اور دعا یہ کریں کہ اس پورے نیچرل کورس میں میرا پاکستان سلامت رہے, میرا پاکستان ترقی کرے, اور میرے پاکستان کے کسی بھی شہری کو تکلیف نہ ہو. آمین. عبد الرحمان ملک, Good. Thank you, سینیٹر, sir. تھینک یو. What a lovely day. تھینک یو سر. آج پہلی دفعہ آپ نے مجھے دھوپ میں چشمہ بنا دیا. نہیں, تھوڑا سا وائٹامن ڈی میں اضافہ ہوگا نا آپ کے. آپ انڈور, آپ خفیہ میٹنگز انڈور کرتے رہتے ہیں. تو ٹھیک ہی ہوں, اللہ کا شکر ہے بڑا. تو وہی کہیں نہیں, مگر وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز میٹنگز کام کریں, دھوپ میں بھی بیٹھا کریں. Good. Good to see you, sir. Thank you, sir. Good to see you.